Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we will start lesson number 4, division and unitary method. So now all of you look at your textbook. We will start lesson number 4, division and unitary method. So before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson. So first we had learned the recall exercise. In the recall exercise we had done, now look at here, 45 divided by 5 equal to 9. 45 divided by 5 equal to 9. So which number we are divided, the number which we are divided, this number is called a dividend. This number is called a dividend. Then which number was divided by dividend, this is called a divisor. This number means 5 is called a divisor, and whatever the answer we are getting, this number is called a quotient. Whatever the number we are getting, this is called the quotient. Then after remainder, when we are dividing any numbers and number is left over, this is called a remainder. Now look at here, 48 divided by 5. In the 5 table 48 present? No. What is the nearest value? 45. 45 is the place of 9. So quotient is the 9, and 48 minus 45, so remainder is the 3. Then after we had done the how to check our division. So remainder is always less than divisor. जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, हमेशा छोटा होना चाहिए. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे डिवाइजर कितना है? 5 है. कितना है? 5 है. और रिमाइंडर कितना बच गया है? 3 बच गया है. रिमाइंडर कितना बच गया है? 3 बच गया है. मतलब हमारा जो डिवाइजर है उससे छोटा क्या है? रिमाइंडर. सो अगर रिमाइंडर बड़ा है डिवाइजर से, मतलब हमारा आंसर गलत है. सो रिमाइंडर वी नीड लेस देन डिवाइजर. रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर. देन हाउ टू चेक? ओके, अगेन second method, quotient. Whatever the quotient means, this is the quotient. Quotient is multiplied by divisor. क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लुक एट हियर, नाउ 9 into 5, 45, सो विल गेट 45. सो वी आर गेटिंग डिविडेंड. अगर हमें रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन हो गया है. अगर ये नंबर लेंगे 48, सो 9 into 5 45, एंड देन वी विल ऐड द रिमाइंडर. उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे. सो 45 + 3 48, सो विल गेट द डिविडेंड. सो दिस इज द when we are done our division, and then we want to check our answer is correct and not correct. So for that one have a here rule, quotient multiply by divisor. क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करते रिमाइंडर. ये तीनों का अगर डिविडेंड की वैल्यू आती है मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. यहाँ पे देखो 9 into 5 + 3 = 48. So this we had done. Then we had done the recall exercise. So this we had done in our last class. Now we will start our today's topic. First, property of division. So how many property of division? 4 properties of division. So first property of division, now look at here. 2 divisions fact can be derived from the 1 multiplication fact. 2 division fact can be derived from the 1 multiplication. 1 multiplication से 2 डिवीज़न फैक्ट होते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 7 × 6. 7 × 6 42. 7 × 6 42. And now look at here, whatever the
जो हमें क्वेश्चन मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है, इस आंसर को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे, ये जो 42 है, 42 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट वाला नंबर है, यहाँ पे जो 7 है, वो आंसर मिलेगा। एंड ये जो 42 है, अगर उसको अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 6। तब हमें क्या मिलता है, 6। अगेन वन एग्जाम्पल, 5 multiply by 8. 5 multiply by 8, दिस इज एग्जाम्पल, 5 multiply by 8 we will get 40। अगर हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है, 40 मिलता है। अभी जो हमें क्वेश्चन मिला है 40 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है 8। 40 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें जो नेक्स्ट वाला नंबर है 8 मिल जाएगा। एंड 40 को हम ये वाला नेक्स्ट वाला नंबर है 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ये वाला नेक्स्ट नंबर 5। 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40। ये जो 40 है, 40 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है 8, वो आंसर मिलेगा। एंड ये 40 को अगर हम 40 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 मिलता है। 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 8। 40 5 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, 8 वाले प्लेस पे। 40 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 के टेबल में 40 कौन से प्लेस पे आता है, 5 वाले प्लेस में आता है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1? 2 division fact can be derived from 1 multiplication fact. Two division facts can be derived from 1 multiplication fact. So this is property number 1. Now look at property number 2. If a number is divided by 1, if the divided by 1, the answer is number itself number. When we are divided 1 in any number, we will get answer is the itself number. For like that in the multiplication, we are multiply 1 in any number, so we will get answer is the itself number. Same in the division, when we are divided 1 in any number, so we will get itself number. यहाँ पे देखो 6 multiply by 1 इक्वल टू 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6। अगर 1 हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, इटसेल्फ नंबर। वन एग्जाम्पल, अगर 24 डिवाइडेड बाय 1, 24 को अगर 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 24। 24 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 24। सो व्हेन we are divided 1 in any number, so we will get itself answer. And when 1 divided by 1, 1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। Then property number 3. Property number 3, if a number is divided by itself, the answer is 1. When we are divided itself number answer, so we will get answer is the 1. जब हम क्या करेंगे, जब हम itself नंबर को itself नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 किया है, 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1, मतलब 10 के टेबल में 10 कौन से वाले प्लेस पे आता है, फर्स्ट वाले ही प्लेस में आता है। एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। सो when we are multiply 1 in any number, so we will get itself number. But in the division property, when we are divided itself number, so we will get answer is the 1. 10 divided by 10, we will get answer is the 1. Now again one example, 16 divided by 16. 16 divided by 16, we will get answer is the 1. जब हम इटसेल्फ नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो अब हमें आंसर क्या मिलता है, तब हमें आंसर मिलता है 1. Then fourth number, if 0 is divided by any number, the answer is 0. When we are divided 0 in any number, we will get answer is the 0. Like that in the division,
like that in the multiplication. In the multiplication example, when we are multiply 0 in any number, so we'll get answer is the 0. Same in the division example, when we are divided 0 in any number, we will get answer is the 0. Now here I have one example, 0 divided by 5 equal to 0. 0 divided by 5, we will get 0 answer. Again one example, 6 divided by 0, we will get आंसर इज द 0. जब हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर इटसेल्फ नंबर मिलता है. नाउ हियर लुक एट हियर some example here. Now here I will solve example number in exercise 4.1 question number 1. सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. ये जो एग्जाम्पल है हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को यूज़ करके सॉल्व करना है. सो ए बी सी, नाउ आई एम सॉल्विंग. देन डी ई एंड एफ, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. विच होमवर्क? ई डी ई एफ, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. नाउ लुक एट हियर फर्स्ट नंबर, 896 divided by 1. 896 divided by 1. So this is the property of 2 when we are divided 1 in any number. So we will get answer is the itself number. So answer is 896. 896 को अगर हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 896 ये आंसर मिलेगा. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. नाउ बी नंबर, 4320 divided by 4320. So when we are divided itself number, so we will get answer is the 1. This is the property number 3. जब हम itself number के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 1 मिलता है. So this is property number 3. Now C number, 0 divided by 8999. When we are divided 0 in any number, so we will get answer is the 0. So this is property number 4. जब हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है. सो दैट आल्सो सेम लाइक दैट फ्रॉम. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. Now look at here. Second number is 24 divided by 4 equal to 4 divided by 24. This is the correct. ये हो सकता है 24 divided by 4 equal to 4 divided by 24. This is the correct. No. 24 को मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर को नहीं चेंज करेंगे. अगर यहाँ पे 24 है और 4 यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 4 है तो इसका आंसर अलग आता है. और 4 डिवाइडेड बाय 24 है, अगर इसको चेंज करेंगे नंबर तो हमें आंसर गलत मिलता है. सो दिस इज़ द इक्वल. नो, दिस इज़ नॉट इक्वल. ये क्या नहीं है, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 24. सो नाउ we'll write this example in the notebook. Second number, 24 divided by 4 equal to 4 divided by 24. It is equal? No. 24 divided by 4 equal to 4 divided by 24 is not equal. ये दोनों भी इक्वल नहीं होता है. जब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा नंबर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में हम नहीं चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे 24 है तो 24 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर मिलता है, एंड 4 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर मिलता है. तो दोनों भी इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल. ये दोनों भी इक्वल नहीं है. नाउ 3 number, if 7 multiply by 38 equal to 266. 7 multiply by 38 equal to 266.
देन 266 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू, देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 38, 7 मल्टीप्लाई बाय 38 करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 266। नाउ 266 है, उसको अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 38। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अगर हमारा जो क्वेश्चन है अगर 1 नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाला आंसर मिलता है। 266 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 38 आंसर मिलता है। एंड 266 को अगर हम 38 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 7 मिलेगा। एंड यहाँ पे है भी, एंड 266 को अगर हम 38 के साथ डिवाइड करेंगे, 266 को अगर हम 38 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 7। तब हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 7। 266 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 38 मिलता है। एंड 266 को 38 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है 7। So this is the property number 1. Now example number 4. Write 2 division facts for. Write division facts for. यहाँ पे डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। एग्जाम्पल दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल टू 46। 4 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल टू 76। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन फैक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिवीजन फैक्ट कैसे करेंगे, 76 को अगर हम 4 के साथ क्या करेंगे, 76 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 19। एंड 76 को अगर हम 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4। 76 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 19। एंड 76 को 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 4 मिलता है। सो आंसर मिलता है हमें 4। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, दिस इज लाइक दैट सेम। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है इसके तरह ही सेम है। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। Example number 5, this is the same. So this is the homework for you. Now look at here, division for the 4-digit number by a 1-digit number. Division of 4-digit number by a 1-digit number. 4 digit के साथ 1-digit number को divide करेंगे। Division of the 4-digit number is done in the same way as the division of 3-digit number. Division of the 4-digit number is done same way as a division of 3-digit number. जैसे 3-digit number को हम डिवाइड करते हैं सेम ऐसे भी है, मतलब जैसे हमने ये किया था 3-digit वाला, ये 2-digit वाला किया था, सेम उसके तरह ही 4-digit का होता है। Example with the 4-digit question, 9,935 mangoes are divided equally between the 8 boxes. How many mangoes are there in each box and how many mangoes are left over? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 9,935 मैंगोज़ है, उसको हमें कितने बॉक्स में डालने हैं, 8 बॉक्स में डालना है। तो हमें देखना है कि कितने बॉक्सेस हमने 1 बॉक्स में कितने मैंगोज जाएंगे और कितने रिमाइंड होते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, 9,985 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 9,935 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। सो नाउ लुक एट हियर, 9 is present in the 8 tables, no. So what is the nearest value, 8. 8 is the place of 1, so we write here 1 and 9 minus 8 equal to 1. 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। नाउ ब्रिंग डाउन द 9। अभी 9 को हम क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे।
Then 19. 19 is present in the 8 tables. No. What is the nearest value? 8 2s are 16. So we will write here 2 and here 16. 19 minus 16, 3. 19 minus 60, 3. Now 3 छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे 3 को. 33 is present in the 8 tables. No. What is the nearest value? Nearest value is the 32, and 32 is present in the 8 table in the place of 4. So 33 minus 32, we will get 1. Now bring out 5. Now 15 is present in the 8 tables. 8 2s are 16. So 16 is the greater than a 15. So we will take 8. 8 is the place of 1. 15 minus 8, 7. So quotient is 1245. 1245 and remainder is the 7. सो वन बॉक्स में कितने मैंगो जाएंगे? 1241 मैंगोज इन ईच बॉक्स. एक बॉक्स में कितने मैंगो जाएंगे? 1241 मैंगोज इन ईच बॉक्स एंड 7 मैंगो लेफ्ट ओवर. और 7 मैंगो क्या हो गए? लेफ्ट हो गए. सो दिस इज एग्जाम्पल 1. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 विथ अ 3 डिजिट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 डिजिट क्वेश्चन हो रहा है. फर्स्ट एग्जाम्पल में 4 डिजिट का हमें क्वेश्चन मिला था. यहाँ पे 3 डिजिट का क्वेश्चन में आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा. 4,932 रुपीज़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 6 वर्कर. 4,932 रुपीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 वर्कर के बीच में. हाउ मच मनी डज ईच वर्कर गेट. ईच वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे हमें निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4,932 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 के साथ. नाउ लुक एट हियर. 4,932 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ. नाउ 4 इज़ द लेस दैन 6. ये जो 4 है क्या है? छोटा है 6 से, तो वो विल टेक 2 नंबर. सो हम क्या करेंगे? ये दोनों नंबर लेंगे, मतलब 49 लेंगे. नाउ 49 इज प्रेजेंट इन द 6 टेबल्स. नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 48. 48 is present in the place of 8. So we will write here 8 and 49 minus 48 we will get 1. 49 में से 48 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता है? 1 मिलता है. नाउ ब्रिंग आउट 3 को ब्रिंग आउट करेंगे. अभी कितना हो गया? 13 हो गया. नाउ 13 is present in the 6 table. No. What is the nearest value? Nearest value is the 12. 6 2s are 12. So we will write here 2 and 13 minus 12 equal to 1. Now bring out the 2. Now 12 is present in the 6 table. Yes. 6 2s are 12. So answer is 822. मतलब हर एक वर्कर को कितने पैसे मिल गए हैं? 822 रुपीज़ मिले हैं एवरी वर्कर को. ईच वर्कर गॉट 822 rupees. So this is example number 2. Now we will start exercise 4.2. Question number 1. Now that question number 1, complete the following division sum. This you write in your textbook. But question number B, divide this you will write in your notebook. ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, बट इसको हमें क्या करना है? नोटबुक में लिखना है. नाउ लुक एट हियर. सो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमें नंबर्स पुट करने हैं. क्या करने हैं? नंबर्स पुट करने हैं. सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ब्लैंक है. ठीक है. सो नाउ 21 इन द 7 टेबल इन द विच प्लेस? 21 7 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है? 3 वाले प्लेस पे आता है. कौन से प्लेस पे आता है? 3. तो सबसे पहले हम 3 लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे 2 इज़ लेस दैन 7. 2 ये 7 से लेस है. तो यहाँ पे अभी 21 कौन से नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें आंसर यहाँ पे 2 आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा. 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ पे कितना बचता है? यहाँ पे बच रहा है हमारा
यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। नाउ हम ब्रिंग आउट करेंगे 4 को, ब्रिंग आउट 4 को करेंगे, ठीक है। तो 24, यहाँ पे 24 है, 24 में से 21 क्यों लिया है, 24 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल्स, नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 21 इज द प्लेस ऑफ 3, सो 24 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा है। नाउ 37 यहाँ पे कितना हो गया है, 7 लिया है, मतलब यहाँ पे भी क्या नंबर होगा, 7, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है ये ब्रिंग आउट किया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे होगा 7, तो हमने 7 को नीचे लिख दिया। अभी 37 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल, 37 प्रेजेंट है, नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 35 इज द प्लेस ऑफ 5, 35 इज द प्लेस ऑफ 5, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 37 माइनस 35, सो विल गेट द आंसर इज द 2। सो ये यहाँ पे आंसर कितना हो गया है, 325 हमें क्वेश्चन मिल गया है और रिमाइंडर कितना मिल गया है, 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है और यहाँ पे 16 दिया है, 0 लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नंबर में से हमने ये नंबर माइनस किया है, तब हमें 0 आंसर मिल गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 16 ही होगा। 16 में से 16 माइनस करेंगे तभी हमें यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड 16 इज प्रेजेंट इन द 4 टेबल्स इन द प्लेस ऑफ 4, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो अभी ब्रिंग आउट 0 किया है, यहाँ पे ब्रिंग आउट 0 किया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या होगा, 0। सो नाउ 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, 0। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, when we are divided 0 in any number we will get answer is the 0, so now we are writing here 0। now यहाँ पे क्वेश्चन में 2 आया है, तो 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 1 दिया है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। क्यों 9 ले रही है, वैसे तो 8 आता है 8 आता है 4 के टेबल में 8 आता है सेकंड वाले प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में 1 दिखा रहे, सो 8 में 1 मिलाएंगे तो कितना होता है, 9, सो यहाँ पे ब्रिंग आउट करेंगे हम 9, यहाँ पे लिख देंगे 8, और -1। क्यों 9 लिया है, 8 भी ले सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में कितना दिया है, 1 दिया है। सो 9 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए। नाउ यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया। 16 क्यों लिया है, यहाँ पे 16 दिया था एंड यहाँ पे रिमाइंडर में यहाँ पे क्या था, 0 दिया था, तो 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिखा है, तो मतलब यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर होगा, 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 लिया है क्योंकि व्हेन वी आर डिवाइडेड 0 इन एनी नंबर सो विल गेट आंसर इज द 0। नाउ 0 को हमने नीचे लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे रिमाइंडर में लास्ट में 1 दिया है इसलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना नंबर दिया है, 2 दिया है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन हमने 8 नहीं लिया है, 9 क्यों लिया है, क्योंकि हम रिमाइंडर कितना बचाना है, 1 बचाना है। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर होता है तो हमें उतने नंबर ऐड करने पड़ते, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन इज द 402 एंड रिमाइंडर इज द 1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 6359 divided by 5, 6359 divided by 5। now look at here, 6 डिवाइडेड बाय 5, 1 हो गया है, सो 5 इज़ द प्लेस ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि
फाइव कौन से प्लेस पे आता है, फाइव के टेबल में 1 आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे है 3 को नीचे ले लिया है 13। नाउ यहाँ पे 2 लिखा है, सो यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। नाउ 13 माइनस 10 3, सो हियर कमिंग द 35, 5 को नीचे लिया है 35। 35 is present in the 5 table, yes 35 is present in the 5 tables in the place of 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 35 जीरो हो जाएगा, 35 माइनस 35 जीरो। नाउ ब्रिंग डाउन द 9, 9 को ब्रिंग डाउन करेंगे। नाउ 9 इज प्रेजेंट इन द 5 टेबल्स, नो। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू इज द 5, 5 टू ज़ा 10 होता है, 10 क्या है, ग्रेटर दैन द 9, 9 से बड़ा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5। यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, एंड 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, सो क्वेश्चन इक्वल टू 1271 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 4। Quotient equal to 1271 and remainder equal to 4. So this is the exercise 4.2 question number A. Question number B, these we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.